गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। આપણે અત્યારે સોમનાથ તીર્થથી પ્રાચીની બાજુમાં જે રસ્તો પડે છે ઘંટિયા ફાટક, ત્યાંથી આપણે આવી અને ભુલેશ્વર ધામ જઈ રહ્યા છીએ અને બસ હવે ભુલેશ્વર આપણે પહોંચવા જ આવ્યા છીએ, બસ ક્ષણ માત્રમાં પહોંચી જશું। તો ચાલો આપણે સૌ ભુલેશ્વર જઈએ। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ। બસ હવે આપણે ભુલેશ્વર ધામના પહેલાં તો માતાજીના દર્શન કરશું। આપણે ત્યાં પહોંચી ગયા છીએ ભુલેશ્વર ધામ, અહીંથી આપણે લેફ્ટ ટર્ન લેશું। ચાલો આપણે તો માતાજીના દર્શન કરીએ। दुर्गावाट सेवाच देवी तम भक्त सुलभे सर्व कार्य विदाहिनी कलोहि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रुवेत्नतः देवी उवाच स्नो देव प्रयक्षामि कलोहि सर्वे साधनं मया तवेष्णेन बिम्बास्तुति प्रकाशते ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप चंद्र श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। જય સિયારામ। અત્યારે આપણે ભુલેશ્વર ધામ પધારી ચૂક્યા છીએ। હમણાં આપણે માં જગદંબાના દર્શન કર્યા। જ્યારે પણ જીવનમાં કોઈ પણ કાર્ય અથવા તો પ્રભુ પાસે પહોંચવું હોય તો પહોંચતા પહેલાં શક્તિની જરૂર પડે। માં શક્તિનું જ્યારે આરાધના થાય અને પ્રથમ જ માં શક્તિની ઉપાસના કરીએ અને એના ચરણોમાં જઈએ, પછી જ આપણે આગળ પ્રભુના દર્શન, પ્રભુના ચરણ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ। તો એટલા માટે જ ભુલેશ્વર ધામમાં પ્રવેશ કરતાં જ સર્વપ્રથમ આપણને મા શક્તિના દર્શન થયા અને હવે આપણે ત્યાં ભક્તિ આપવાવાળા મા શક્તિ આપણને જ્યારે આપણે વંદન કરીએ ત્યારે આપણી અંદર ભક્તિ પ્રગટ થાય। પણ ભક્તિ પણ ક્યારે પ્રગટ થાય? જ્યારે દેવ બધા છે એમાં એક હનુમાનજી મહારાજ એવા છે કે જે ભક્તિ પ્રદાન કરે છે અને એ અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિના દાતા પણ છે। અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ કે દાતા અશ્વદીન જાનકી માતા। તો એવા શ્રી હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરશું। પછી જે ઠાકોરજીના જ્યારે ભક્તના દર્શન કરીએ, હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરીએ, પછી જ આપણે પ્રભુના દર્શન કરી શકીએ। કારણ કે એમના દ્વાર પણ રામ દ્વારે તુમ રખવારે હોત ન આજ્ઞા બીનું પૈસારે। તો એવા શ્રી હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરી અને પછી આપણે ઠાકોરજીના દર્શન કરશું। તો ચાલો આપણે અત્યારે પ્રથમ તો માં ખોડિયારમાંના દર્શન કર્યા, માં શક્તિની ઉપાસના કરી। હવે આગળ જઈ અને ત્યાં હનુમાનજી મહારાજ છે, ત્યાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી બિરાજે છે, ત્યાં દેવોના દેવ મહાદેવ કૈલાસપતિ સ્વયં શ્રી હરિ શ્રી ભોળેનાથ ભુલેશ્વર મહાદેવ બિરાજે છે। ત્યાં ગુરુદેવ પણ ત્યાં બિરાજમાન છે, રામાયણી સંત। એ સંતના આપણે આશીર્વાદ લઈશું, એનો મહિમા આપણે સમજશું। ચાલો આપણે સૌ ભુલેશ્વર ધામમાં પ્રવેશ કરીએ। આપણે ભુલેશ્વર ધામ પહોંચી ગયા છીએ। આ ભુલેશ્વર ધામ પહોંચવા માટે થઈ અને આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે તમે સોમનાથ તીર્થધામમાંથી આવો તો પ્રાચી પાસે ઘંટિયા ફાટક આવે છે। તો ત્યાં ઘંટિયા ફાટકથી આપણે 7-8 કિલોમીટર આ બાજુ આવીએ એટલે ભીમદેવળ ગામ આવશે અને ભીમદેવળ ગામથી
1 કિલોમીટર જેટલું જ આગળ આવીએ એટલે શ્રી ભુલેશ્વર ધામ આવશે. અને જો આપણે જુનાગઢ કે તાલાળા બાજુથી આવતા હોય તો એના માટે આપણે માધુપુર આવવાનું, અને માધુપુરથી 7 કિલોમીટર પ્રાચીવાડા રોડ ઉપર આ ભુલેશ્વર ધામ છે. ચાલો આપણે સૌ મળી ભુલેશ્વર ધામના દર્શન કરીએ. જય શ્રી રામ. પછી ત્યાં એને કહી દો કે ચાલો રામકૃષ્ણ ડોલમાં ઉતારીએ છીએ. જો ડોલ અહીંયા જ ના થાય બીજી ડોલ લઈ લો કોઈ ચાલે. જો લાકડી છે, જો ઓલા દીપ માળામાં ટંગાડેલી છે. દર્શન કરવા આવો. જય શ્રી રામ. લોકાભિરામ રામચંદ્ર શરણમ પ્રપદ્યે આવદા પ્રતામ દાતર ભગવાન લોકાભિરામ મનોજ માર્ગો પિતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ વાદાત્મજનવાન શ્રી રામ જોતમ શરણમ પ્રપદ્યે શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. શ્રી હનુમાનજી મહારાજ જય. દર્શન કર્યા અને હવે માતાજી આપણે શક્તિના દર્શન કરીએ, શક્તિની આરાધના કરીએ, પછી ભક્તિ માટે પ્રભુના દર્શન માટે ભગવાનના ભક્ત એવા શ્રી હનુમાનજી મહારાજના શરણોમાં જવું જોઈએ. તો ચાલો આપણે સૌ મળી. ખૂબ જ દિવ્ય સ્વરૂપ છે હનુમાનજી મહારાજનું, ને અહીંયા વારંવાર અમે લોકો આવતા હોય છીએ અને ખૂબ આનંદ લેતા હોય છે હનુમાન ચાલીસાનો. તો હનુમાન ચાલીસાના પાઠ પણ આપણે કરશું અને સાથે હનુમાનજીના દર્શન પણ કરશું. ચાલો, જય શ્રી રામ. શ્રી હનુમંતે નમઃ. હનુમાન ચાલીસા. શ્રી ગુરુચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી બરનઉ રઘુવર વિમલ જસુ જો દાયક ઉપચારી बुद्धिहीन तनु सुंदर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र पद जय हरणम सीताराम. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी देखो आतुर रघु चरित्र सुनि देखो रसिया राम स्वरूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति नीति क्रोध बड़ाई मम प्रिय भरत संभाई सरस्वतन दर्शन કર્યા. હનુમાનજી મહારાજ ભક્તિ આપવાવાળા અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિના દાતા છે અને માં જાનકીના એમના ઉપર આશીર્વાદ છે. તો પ્રભુના હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરી અને શ્રી ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણ ભૈયા, ચારો ભૈયા, સરજુ મૈયા અને માં જાનકીના દર્શન કરીએ. ચાલો સૌ મળી ભગવાન શ્રી રામના ચરણોમાં જઈએ. જય શ્રી રામ. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરી અને જે ભગવાન રામની ઉપાસના કરે છે, જેના ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી રામના ઈષ્ટદેવ એવા શ્રી ભુલેશ્વર દાદા એટલે કે કૈલાસપતિ મહાદેવ. આપણે બધી કથાઓમાં ભાગવતમાં રામચરિતમાં જોઈએ જ છીએ કે જ્યારે ભગવાન શ્રી રામનો અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થાય ત્યારે શ્રી ભોલેનાથજી એમના દર્શન માટે આવે ને જ્યારે પણ ભગવાનને જ્યારે સેતુ બાંધવાનો હતો ત્યારે એ ભગવાન શંકરની ઉપાસના કરે છે. તો બંને દેવો એક જ છે, બંને એકબીજાને ઈષ્ટ સમજે છે. તો એવા ભગવાન શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરી આપણે સૌ શ્રી ભુલેશ્વર દાદાના સાનિધ્યમાં જઈએ. ચાલો એમના દર્શન કરીએ.
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यं महाकाले ओंकारे मंगलेश्वरं परलिंगनाथं च श्री भुलेश्वराय नमः। वाराणसी जगदीश्वर संतराम महादेव मानसिक रुद्राभिषेक ओम नमो भवाय शिवाय गजाननं भूतगणाधिपति सिद्धं ओम नमः शिवाय नमः शिवाय उमासुतं शोकविनाशकारकं अनिनन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिस्मुच्छन्तामं उलंद सिंधु भगवती आद्य शक्ति તમે લઈ લો તમારો એક દિવસ આવી જાય સિયારામ જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે ભુલેશ્વર ધામના દર્શન કરી રહ્યા છીએ। પહેલાં માતાજીના દર્શન કર્યા, શક્તિના દર્શન કર્યા, પછી શ્રી હનુમાનજી મહારાજના, પછી ભગવાન શ્રી રામચંદ્રના ને પછી ભુલેશ્વર દાદાના। હવે આપણે ગુરુ ભગવાન, આમ તો ગુરુનું નામ મુખેથી ના લેવાય, પણ અત્યારે તમારી બધાની જાણ માટે થઈ, તમને ઓળખાણ કરાવવા માટે થઈ અને એવા ગુરુ ભગવાન શ્રી કમલાચરણજી ફલહારી એ બાપુને ત્યાં આપણે દર્શન કરશું। અને આપણી સાથે પણ અત્યારે દર્શનમાં આવ્યા જ હતા। આપણે એમની સાથે આ જગ્યાનું જે મહત્ત્વ છે એ સમજશું અને કોઈ રામચરિત માણસ છે ભાગવતના દ્રષ્ટાંતોથી થોડું એની પાસે જ્ઞાન મેળવશું। ચાલો, જય સિયારામ। બરાબર। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव भगवान, मैं यहाँ बार बार नाम नहीं लूँगा, आपको मैंने पूज्य सदगुरु भगवान का परिचय तो करवा दिया। तो पूज्य सदगुरु भगवान के श्री चरणों में पधारे हैं और हम लोगों ने बहुत आनंद किया यहाँ पे भुलेश्वर धाम में। तो ये प्राकृतिक जगह है और इसका विशेष जानकारी, उसका परिचय, और हम तो मतलब इतना परिचय बाबा से लिए है, बस उसके मुख से ही अगर सुनेंगे तो उसका विशेष आनंद रहेगा। और ये जो भुलेश्वर धाम है उसकी महिमा वो तो गुरुदेव से सुनेंगे, क्योंकि ये भुलेश्वर धाम तो अपनी महिमा कभी कहेगा नहीं। बड़ा बड़ा ही ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारे मूल। वो तो कोई जो जवेर की जो कीमत है वो कोई बड़ा सोनी है वो ही कर सकता है। तो इतना पवित्र जो धाम है ये भुलेश्वर धाम, उसकी जो इतिहास है, उसका जो भी कुछ है पुराण में, वो उसका परिचय तो बाबा ही कर सकते हैं। तो आइए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करें कि इस जगह का हमें महत्व समझाए। जय श्री राम। जय श्री राम। अंजनी नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपिस्वक्षांतारम वंदे लंका भयंकरम उलंद सिंधु सलेनम सलेनम शोक वाहि जनकात्मजाया आदाय तेनेव दधाय लंका नमामि तुम प्रज्वलराजनेयम गोस्पति कृतवारीशम अक्षरकृतराश्रम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम परत परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमान जी महाराज आज अपने भुलेश्वर महादेव की सानिध्यताना सेवन कर रहे हैं, जो अखंड सच्चिदानंद परमात्मा हैं और वह स्वयंभू भी हैं। और उनका इतिहास ऐसा है कि हमारी जो भारत भूमि है उसका चयन, उसका संशोधन 2 बार हुआ है। एक बार महान ऋषि संकल्प सिद्ध ऋषि जो विश्वामित्र हुए हैं,
उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं राज ऋषि हूँ, राज ऋषि पद से हमको देवत्व तत्व प्राप्त करना है, तो हमको ब्रह्म ऋषि बनने की जरूरत है। क्योंकि ब्रह्म तेज जो जरूरत जो पड़ती है व्यक्ति को, तो व्यक्ति अपने को बिन तप तेज की कर विस्तारा, रामायण में भी लिखा हुआ है, जब तपस्या और तेज हो तभी कोई क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। तो विश्वामित्र महाराज को ऐसा विचार आया, उनके मन में ऐसा चिंतन आया कि हमको तपस्या करना चाहिए, क्योंकि तपस्या और तेज के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने सारी पृथ्वी पर जितना जगत है, जगत की पृथ्वी पर जाकर के उन्होंने संशोधन किया, आकर के इस भूमि पर जहाँ पर आज हम और आप सब बैठे हुए हैं, उस जमीन पर जब विश्वामित्र जी महाराज पधारे, आकर के देखा, इस भूमि का अनुभव किया और यहाँ पर बैठे तो सहज विमल मन लाग समाधि, ऐसी जगह को देख करके जो शांतिप्रद भूमि है उस पर बैठ करके चिंतन किया। जब वो तपस्या चालू कर दी तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं किसी एक देवता की सानिध्यता में, जैसे साक्षी गोपाल होते हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास में ऐसा देवता होना चाहिए कि जिसकी साक्षी में बैठ करके और मैं तपस्या करूं, और अगर कोई कुछ कहेगा तो वो साक्षी भरना चाहिए। तो उन्होंने विचार किया कि मैं किसको साक्षी रखूं। देवों का देव महादेव का उनको चिंतन आया, भूत भामन भोलेनाथ का उन्होंने स्मरण किया। भूत भामन भोलेनाथ हो तो आस्तोष तुम औगड़दानी, तुरंत ही सुना, वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बोलो ऋषिराज, आपने मुझे याद किया? बोले जी। भूत भामन बोलिए, आज्ञा दीजिए। बोले आज्ञा नहीं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लिंग स्वरूप में विराजमान हो जाओ। जब विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की तो भगवान भूत भामन तुरंत ही वहाँ जो अभिबाण है, जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग स्वरूप में तुरंत ही वो प्रागट हो गए और यहाँ पर विराजमान हो गए। यहाँ पर विश्वामित्र जी तपस्या करने लगे। जब यहाँ से पास में एक दो फरलांग पास में ही, मतलब 2 फरलांग के पास में एक बहुत सुंदर सरस्वती बहन करती हैं। वहाँ पर सरस्वती में स्नान करने के लिए जाते थे। उनको जंगल में बहुत परेशानी पड़ती थी। एक दिन विचार किया कि इतना समय मैं व्यर्थ खो देता हूँ, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर माँ भगवती गंगा का आह्वान करूँ। गंगा का आह्वान किया, गंगे माँ प्रकट हुई। राज ऋषि जी आपने बताइए, ऋषिराज आपने हमको बुलाया? बोले जी माते। आज्ञा? बोले आज्ञा नहीं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, यहाँ से प्रवाहित होकर बहन कीजिए। तो यही गंगा है जो इस समय पर बहन कर रही है, यहीं से वो प्रकट हो गई। तुरंत ही ऋषिराज ने कहा, उनके संकल्प द्वारा तुरंत ही गंगा जी प्रागट हो गई, जिसका नाम है श्री भगवती गंगा। वो गंगा जी यहाँ से प्रागट हो गई। देव ऋषि जो ऋषिराज यहाँ तपस्या करने लगे। अब तपस्या करते 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 उनको 10,000 वर्ष बीत गई। जब वो तपस्या कर रहे थे, उनके मन में विचार आया कि अब तो मैं राज ऋषि से देव ऋषि की पदवी प्राप्त हो चुकी होगी, तो अब जाऊं किसके पास में? तो उन्होंने ब्रह्म ऋषि के ही पास में जाना पड़ा। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। जब वो वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, वशिष्ठ जी ने देखा और कहा, आइए राज ऋषि जी, दंडवत। जब दंडवत किया, क्योंकि हमारे संतों में सबसे पहले जब संतों को संत मिलते हैं तो पहला शब्द है दंडवत, पधारिए। जब सामने से कहेंगे दंडवत महाराज, तो आइए पधारिए दंडवत महाराज। तो उन्होंने जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करते ही उन्होंने कहा, आइए पधारिए राज ऋषि जी दंडवत। वो कोपायमान हो गए, क्रोधायमान हो गए कि वो मैंने 10,000 वर्ष तपस्या की और हमको कह रहे हैं राज ऋषि, मैं ब्रह्म ऋषि का तत्व जो है ना धराने वाला। वो क्रोध में आकर के अपने क्रोध को ना रोक सके, उन्होंने 10-20 पुत्रों का वध कर दिया। 10-20 पुत्रों का वध करके तुरंत ही वहां से पुनः आए, यहाँ फिर से जो है ना तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यानी 5 बार 10,000 वर्ष तपस्या करके, और यहाँ से वशिष्ठ जी के जब आश्रम में जाते थे, वशिष्ठ जी राज ऋषि कह देते थे 10-20 हजार पुत्रों का वध करके 5 बार गए, 100 पुत्रों का वध कर दिया। वध करने के बाद में फिर से आए, आकर के यहाँ
फिर 10,000 वर्ष तपस्या करी। 10,000 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात उपरांत उनको ये विचार आया कि मैं वशिष्ठ जी के पास में जा रहा हूँ। अगर वशिष्ठ जी हमको राजऋषि कहेंगे तो मैं अपने हथियार के द्वारा तुरंत ही उनका सिर को जो है ना रुंड मुंड कर दूंगा, तुरंत ही सिर काट दूंगा। ऐसा संकल्प करके यहाँ से विश्वामित्र जी महाराज सीधे वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में पहुंचे। वहां जाते इनको संध्या शाम हो गई थी। जब शाम हुई तो वहां जाकर के क्या देखते हैं कि वहां उन्होंने अपना प्रसाद लेकर के तुरंत ही वहां शयन कर रहे थे कुटिया के अंदर, और अरुंधति जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। जब चरण सेवा करते करते बहुत समय जब बीत गया, इनको चल रहा था, तो अरुंधति जी के आंख से एक अश्रुपात हो गया और उनके जो ऋषिराज थे उनके जो है चरण पर पड़ा। जब चरण पर पड़ा तो उन्होंने कहा, देवी यहाँ कोई पंखी नहीं है जिसने पेशाब किया हो, यहाँ कोई अभी बारिश का टाइम नहीं है कि जिससे कि बरसात आई हो, फिर मेरे पैर पर ये चरण पानी की बूंद कहाँ से आई। देवी जो है ना सत्यभाषी थी, क्योंकि सत्यव्रत की पत्नी सत्यभाषी ही होती हैं। उन्होंने कहा कि नाथ, यह कोई पंखी का पेशाब नहीं है, बरसात की बूंद नहीं है, परंतु स्नेह का एक मेरे मात्र स्नेह का आंसू पड़ गया। बोले देवी ये क्यों? कि मैं 100 पुत्रों की माता होने के उपरांत भी मेरी गोद खाली है। तो उन्होंने समझाया देवी, और वो सारा वृतांत जो है विश्वामित्र जी सुन रहे थे बाहर बैठ करके, वो सुन रहे थे बाहर बैठ करके। जब सुन रहे थे तो सुनते सुनते उनको जो है ना दिमाग में बैठा रहे थे। वो कहने लगे कि देवी, अरे जब उनको देना था तो हमको और आपको निमित्त बनाया, जब लेना था उन्होंने किसको निमित्त बनाया? विश्वामित्र को निमित्त बनाया। वो चले गए, कोई बात नहीं है, परंतु आप क्यों जो है ना देवी चिंता करती हो? इसी का नाम है मैं और मोर तोर तह माया, जय बस कीने जीव निकाया, गौ गो चर जय लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे देवी, जब निमित्त बनाया तो हम आपको, और विश्वामित्र जब लेना था तो विश्वामित्र जी को बोले वो तो ठीक ही है, मैं 100 पुत्रों की माता होने के उपरांत भी मैं आज मेरी गोद खाली पड़ी हुई है, इसीलिए आप श्री जो है ना कृपा करके ये बताइए कि आप क्यों नहीं राज ऋषि से देव ऋषि, वहां पर देव ऋषि ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते हो? उन्होंने कहा देवी, वो तो महान तेजस्वी देवता हैं, महान तेजस्वी एक ऋषि हैं, संकल्प सिद्ध ऋषि हैं। क्योंकि हम जिस भूमि पर बैठे उसी संकल्प सिद्ध ऋषि की भूमि पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा वो संकल्प सिद्ध ऋषि हैं, उन्होंने ऐसी शांतिप्रद भूमि पर जो है ना वो तपस्या की है, और भूत भामन भोले जो देवों में देव महादेव की सानिध्यता में उन्होंने तपस्या की। वो तो तेजस्वी है, तपस्वी है, बहुत महान विभूति है, जिसके सामने ब्रह्मा भी जो है ना यानी मतलब अपनी दृष्टि से कुछ कमजोर पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति का मैं क्या वर्णन करूं? तो उन्होंने कहा नाथ, फिर आपने क्यों नहीं कहा कि आइए देव ऋषि ब्रह्म ऋषि जी? बोले देवी, मैं सत्यभाषी हूँ, जब उनके हाथ में आयुध देखता हूँ, हथियार देखता हूँ, तो मुझे तत्व वही याद आ जाता है कि अभी भी उनके शरीर के अंदर से जो क्षत्रिय तत्व है वो नष्ट नहीं हुआ। तो मैं उनका सोच विचार करके तुरंत ही आइए राज ऋषि जी कह देता था, परंतु देवी वो इतना तेजस्वी है, अगर आज भी वो आए और आकर के अपना शस्त्रों को सब फेंक करके शास्त्र हाथ में ले, तो मैं आज भी ब्रह्म ऋषि कहे बगैर कभी चूक नहीं सकता हूँ। वो तो महान विभूति है। जब विश्वामित्र जी ने ये सुना तो विश्वामित्र जी महाराज को बहुत विचार हुआ कि अरे रे रे, ऐसा बिल्कुल निष्क्रोही निष्प्रिय निर्मोही व्यक्ति कि जिसके मैंने 100 पुत्रों का वध कर दिया, फिर भी वो हमारी बड़ाई कर रहा है। ऐसे महान विभूति कितने हैं इस जगत में, ऐसे विभूति का मैंने कितना बड़ा अपराध किया। अपना अपराध समझ करके मन में पश्चाताप किया और अपने हथियार को उन्होंने फेंक दिया और हाथ में उन्होंने शास्त्र लिया। शास्त्र लेकर के जब वह वशिष्ठ जी के पास में गए, वशिष्ठ जी ने देखा कि शास्त्र हाथ में है, उन्होंने तुरंत ही कह दिया,
आइए राज ऋषि ब्रह्म ऋषि जी। ब्रह्म ऋषि देख करके दोनों एक दूसरे से मिले, जैसे कि राम और भरत की जो मिलन थी वो उस प्रकार से दोनों ऋषि मिले और मिल करके वहां से अपने ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करके, तो वही जो है ना यहाँ पर वो महादेव विराजमान थे। जब महादेव विराजमान थे यहाँ पर, अब समय जाते हुए सतयुग से त्रेता गया, त्रेता के बाद में द्वापर गया, द्वापर के बाद में जब कलयुग का अंत आया तो उस समय पर पांडव जो है ना पांडव हुए। तो पांडवों का जब पांडवों के लिए वनवास हुआ तो वनवास क्षेत्र यहाँ पर निकाल करके उन्होंने पर एक यज्ञ किया था। पूर्व वाहिनी पास में सरस्वती है, उस पूर्व वाहिनी सरस्वती पर यज्ञ किया। यज्ञ में सारे देवताओं का निमंत्रण दिया, यहाँ महादेव का भी निमंत्रण दिया, परंतु बुलाने के लिए भूल गए। जब वो बुलाने का भूल गए, वहां पर जाकर के सारे देवता आ गए। सारे देवता आकर के और वहां पर भोजन के लिए बैठ गए। जब भोजन हो चुका, उनका जो परस गया, तो उन्होंने हर हर महादेव हर का नाला लगाया और यहाँ पर महादेव ने सुना। सुनते ही वो तो कुपित हो चुके, क्योंकि क्षणिक रुष्टम क्षणिक तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे, वो थोड़े में ही, क्योंकि वो ऐसे देवता हैं। ऐसा एक आया है कि एक धाम है, बैजनाथ धाम है, तो वहां पर बैजू करके एक ग्वालिया था, ग्वालिया रहता था बैजू करके, बैजनाथ जिसका नाम बैजू था। अब वो बैजू ग्वालिया वो ढोर चराने जाता था। उसी समय श्रावण महीना आ गया। श्रावण महीना में सबने अपना अपना बैठ करके संकल्प लिया कि कल से श्रावण महीना है, मैं 5 बेलपत्र चढ़ाऊंगा। एक बोला मैं 10 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, एक कहता है मैं 101 बेलपत्र चढ़ाऊंगा। परंतु बैजू था, अब बैजू ने कहा, क्या कहा, बोले हमको बेलपत्र का मंत्र नहीं आता है और मैं कुछ चढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा नियम लेता हूँ कि जो हमसे चल जाए। तो उसने क्या नियम लिया, क्योंकि बैजू बिल्कुल भोला भाला था, बोले मैं 10 गाली और 5 डंडा लगाऊंगा रोजाना। मैं 5 डंडा मारूंगा और 10 गाली दूंगा भगवान को, और 10 गाली देकर के पूरे श्रावण महीना में अपना ये नियम निभाऊंगा। अब गाली का और डंडा का जो है ना, उन्होंने वो नियम पूरा चालू कर दिया। अब नियम चालू होते होते ऐसे, मतलब एक दिन क्या हुआ कि दूसरे जो सीम थी, जिस क्षेत्र को कहते हैं, उस क्षेत्र में ना ले जा करके दूसरे क्षेत्र में ढोर ले गए थे। अब वहां से चरा करके जब शाम को आया तो उसकी माँ ने उसको थाली परस दी। वो थाली पर बैठ भी गया बैजू, परंतु बैठ करके उसको याद आ गया कि अरे मेरा श्रावण महीना चल रहा है, मैंने आज गाली नहीं दी और लकड़ी भी नहीं मारी। अब लठ नहीं मारा तो हम वो लकड़ी के बगैर कैसे जो है ना भोजन पा सकते। भोजन से उठा, माँ ने रोका कि बेटा बैजू, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। बोले माँ मेरा अभी श्रावण महीना कुछ नियम चल रहा है, सुन तो बैजू। बोले नहीं माँ अभी हाल आता हूँ। वो दौड़ा हो, क्योंकि दौड़ने के लिए कोई ग्वाल बहुत मतलब तेज होता है। वो दौड़ करके गया, जा करके भगवान दूर से ही उसने गाली चालू कर दी और 10 गाली वहां पहुंचा। 10 गाली जैसे ही लकड़ी उगाई तैसे ही भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए। मांग मांग बैजू बोले नहीं नहीं अभी, बोले अब तेरा नियम पूरा हो गया, अब जाने दे यार, लकड़ी मार नहीं, अब तुम तेरा नियम ही पूरा, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, बोल। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है। बोले भोलेनाथ। बोले भोले निकाल दो। बोले तो बोले बैजनाथ, आज से मेरा आगे तुम्हारा पीछे, पहले बैजू पीछे नाथ। तो वो तो क्षणिक रुष्टम क्षणिक तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे, ऐसे देवता। जब इनके पास में जो है ना इनको क्रोध आया, अरे बोले मैं यहाँ बैठा हूँ, हमको निमंत्रण दे गए थे, पूर्व वाहिनी सरस्वती पर सारे देवता भोजन पा रहे हैं, देखें तुम कहाँ से जल पिलाओगी। वहां सरस्वती चालू थी, इन्होंने अपनी माया से पूरी सरस्वती सुखा दी। जब वो सरस्वती सूख गई तो किसी ने जाकर के माँ कुंता से कहा। कुंता ने धर्मराज को बुलाया, धर्मराज उन सबको सौंप करके और यहाँ आए। बोले महादेव को मैं माँ भूल गया हूँ, चलो। यहाँ आकर के उन्होंने प्रार्थना की कि पुत्र पुत्र जाए थे कुछ दफे माता कुमाता ना भवती ही, हम तो आपके पुत्र हैं, हम कभी भी कुछ भूल कर सकते हो, परंतु आप तो हमारे माँ बाप हो, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो जो कुछ भी हो सर्वस्व आप ही हो, आप मेरे ऊपर कृपा कर जाओ। तो तुरंत ही वो प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कुंता ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है जो हो गया, परंतु अब तो आप तो कृपा कर दीजिए। इन्होंने एक नारियल दिया और नारियल दे करके कहा कि जाओ जहां जो देवता बैठे हुए हैं उनके बीच में तोड़ देना इसको, जब तुम तोड़ोगे तो वहीं से गंगा जी प्राकट हो जाएगी। तो इन्होंने जाकर के वो नारियल तोड़ा तो उसी का नाम नारियल पड़ गया। वो यहाँ से सीधा खांबा होकर के आगे जाता पड़ता है, वही नदी, उसी का नाम है नारियली। तो नारियली, इसी से इनका नाम पड़ गया श्री भुलेश्वर महादेव। तो भुलेश्वर महादेव
वो तो कुछ प्रेरणादायक जो है ना देवता है और स्वयंभू भी है और संकल्प सिद्ध भी जगह है यहाँ की। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो अब तो जो देवता का कभी उत्थापन होते हैं वो यहीं पर बैठे हुए थे। सन 84 में, मैं 82 में द्वारका था, द्वारका में मंदिर का काम चालू करा करके गायत्री मंदिर का मैं वहां से जब चल दिया तो हमको उनकी प्रेरणा हुई, कुछ प्रेरणा हुई। मैं यहाँ आया, देखा यहाँ मकान तो नहीं था, परंतु देखा कि जगह बिल्कुल दिव्य जगह है। और 3 वस्तु जो आपको मैंने बताया था, अब उसका उल्लेख भी कर देता हूँ। वैसे उल्लेख अभी तक तो नहीं किया, परंतु आज आप हमारे साथ में, क्योंकि कुछ ऐसे रामायण में लिखा हुआ है कि अगर जो है ना कोई व्यक्ति बिल्कुल भाविक व्यक्ति, उसको कभी छिपाना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें दोष लगता है। इसलिए आपके सामने नहीं छिपा सकता हूँ। जब मैं इस जगह पर आया हूँ, जगह का प्रभावित मैं जगह से क्यों हुआ हूँ कि जब मैं वहां से आया और आकर के देखा तो शिव जी यहाँ स्वयंभू और यहाँ गंगा जी चालू, जो इस तरफ जो गंगा जी यहाँ का उसका जो मुखारबिंद है, तो गंगा जी भी बिल्कुल यहाँ से स्वयंभू गंगा है। और तीसरी वस्तु है यहाँ उदम्ब का झाड़। उदम्ब का मतलब उमरा, उमर का जो झाड़ है, इस तरफ उमर का झाड़ है ऊपर है। हाँ, तो उसके ऊपर बेलपत्र जो अरे ये जो है ना लता पता जो छा गई हैं, बाकी ये उदम का झाड़ है, उमरा का झाड़ है। तो ये उमरा का झाड़ देख करके 3 वस्तु कोई भी एक जगह नहीं मिलती है। अगर उमर और नदी मिलेगी तो शिव जी नहीं मिलेंगे, और शिव जी नदी मिलेगी तो उमर नहीं मिलेगा, और उमर शिव मिलेंगे तो नदी नहीं। तीनों वस्तु एक जगह नहीं मिलती है, वो हमको पता था। मैं आकर के यहाँ रुक गया। रुकने के बाद में भोलेश्वर देवता ने कुछ हमको ऐसा अन्य मतलब मेरा कुछ दोनों का करार हुआ है, वो तो मैं बाहर नहीं पाड़ सकता हूँ, क्योंकि उसका अभी उसकी आज्ञा नहीं है, उसको बाहर मैं नहीं पाड़ सकता हूँ। मेरा दोनों का करार हुआ और मैं यहाँ पर जब रहने लगा तो रहने के पश्चात उस तत्पश्चात में तो फिर धीमे धीमे उनकी कुछ ऐसी कृपा हुई। बोलो देखो बेटा, कोई भी यहाँ आए तुम उसको भोजन पवाओ, बस भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही मेरी भोलेश्वर की बानी। इसमें सब कुछ तत्व जो छुपा हुआ है वो मैं गूढ़ तत्व जो है आपको बता रहा हूँ, और सब नहीं बोल सकता हूँ, पर बस वही भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही मेरी भोलेश्वर की बाणी। तो उन्होंने कहा 2 से बेटा कभी पीछे नहीं हटना, जीवन में तुमको कभी भी जब भी जरूरत हो तब बस मेरा चिंतन कर लेना। तुमको भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही मेरी भोलेश्वर की बानी। उन्होंने ये कहा। अब इसके पश्चात में जब मैं यहाँ रुकने रहने लगा, उसके बाद में भगवान भूत वामन भोलेनाथ इनकी कुछ कृपा हुई, और कृपा के उपरांत श्री राम, जब मेरे भोलेश्वर महादेव की मेरी कुछ अंत्येष्ट यानी मतलब अंदर का कुछ इनका संकल्प मेरे अंदर, मेरा संकल्प मतलब ये तो सुन ही लेते थे, तो इन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। उसके पश्चात में जब मैं यहाँ रहने लगा तो सबसे पहले हमने मारुति को आवाहन किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस समय पर टीम्बा गांव का मतलब गांव का जो है ना खेरा जो बांधता है ना, जब गांव जो है ना बसाता है, तो गांव बसाने के सबसे पहले हनुमान जी को विराजमान करना पड़ता है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा सबसे पहले हनुमान जी महाराज को, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज को यहाँ विराजमान करूं। फिर हनुमान जी महाराज का संकल्प लिया मंदिर का जो है ना, किसी भी प्रकार से हनुमान जी ने मंदिर के ऊपर कृपा कर दी, भोलेश्वर देवता ने। हनुमान जी महाराज का जब मंदिर बना तो मैंने संकल्प लिया था कि जब हनुमान जी महाराज का मंदिर बन जाएगा तो मैं रामार्चा पूजन करूंगा। रामार्चा पूजन बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि जिस क्षेत्र में जहाँ पर रामार्चा एक बार पूजन हो जाता है उस भूमि का भाग खुल जाता है। गुरु जी, ये रामार्चा जो पूजन है जी, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि वो क्या है और कैसे। जी, तो रामार्चा पूजन जो है, हम रामार्चा की मैं सूक्ष्म बिल्कुल आपको कथा कह दूं। हाँ जी, कि सबसे पहले रामार्चा ब्रह्मा जी ने की थी। जब ब्रह्मा जी ने रामार्चा ब्रह्मलोक में की तो उन्होंने सब देवताओं को निमंत्रण दिया, उसमें शिव जी को भी निमंत्रण दिया था। अच्छा, जो रामार्चा जो इनको निमंत्रण दिया ये सब गए, पर पार्वती जी को नहीं ले गए थे, इसीलिए। और जो रामार्चा उन्होंने किया उसका ये महत्व है कि जो व्यक्ति रामार्चा करता है, रामार्चा जो सवेरे प्रारंभ हो जाती है
सारे जितना भूमंडल के देवता हैं सबका वहाँ पर स्थापना होती है। उस स्थापना होने के बाद में भगवान राघवेंद्र सरकार श्री सीता जी और राघवेंद्र सरकार के बीच में इनकी स्थापना होती है। 5 बजे सवेरे 8 बजे से 5, 6, 7 बजे तक इनके जो है ना पूजन पूरा हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति वो रामार्चा पूजन करता है उस भूमि का भाग खुल जाता है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक विद्वान हमारे गुरु तुल्य रामदास जी महाराज रहते थे मूल द्वारका में, तो उनको बुला करके मैंने रामार्चा कराई। रामार्चा कराने के बाद में फिर मैंने संकल्प लिया था कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आएगा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जो हमारे भुलेश्वर की कृपा दृष्टि रहती है तो वो चालू उसी समय से चालू अमृत चालू कर दिया था। उसके बाद में हमको एक गाय प्राप्त हुई थी, गंगा गाय, जिसका नाम था गंगा। वो जीवन में कभी ब्याई नहीं थी और उसने 18 साल दोने दिया। 18 साल दोने के बाद में एक गाय का मैं अभी आपको थोड़ी देर में फोटो बताऊंगा। वो गाय 18 साल हमको दोने दिया उसने। 18 साल के बाद में जिस समय पर उसका अंतिम दिन आया, जब उसको जिस दिन अपना शरीर छोड़ करके गोलोक में जाना था, उस दिन मैं दोने के लिए गया। दो करके जब बाहर निकलते उसी दिन उसने हमको ऐसे मुंह से खींचा। तो मैंने उससे प्रार्थना की कि आज हमको रोको मत, क्योंकि आज पहला दिन है, हमारे यहाँ श्रावण महीना का पहला दिन है और लोग बाग बहुत आ रहे। आज मैं शाम को आकर के आपके ऊपर ज़्यादा देर तक हाथ फेर दूंगा, अभी मुझे फुर्सत नहीं। इतना कह करके मैं वहाँ से चला आया। 1 घंटे के बाद में एक बिटिया आई, एक लड़की आई। उसने कहा कि बापू मुझे गुड़ और रोटी खिलाना है गंगा को। मैंने कहा जाओ बेटी, गौशाला में है। गौशाला में जाई तो कहती है कि वो खड़ी नहीं हो रही। मैंने जाकर के देखा गंगा बैठी हुई थी और बैठे ही अपना शरीर छोड़ दिया था। जब मैंने जाकर के उसको देखा, मैंने कहा गंगा, जब नहीं बोली तो हमने ऐसे हिलाया, उसका शरीर शांत हो गया था। फिर मैंने अभी उसका मेरे पास में ही उसका मस्तक रखा हुआ है। मैंने जंगल में छोड़ दिया था उसको, तो उसका सब भक्षण कर गए। उसके बाद में मैंने यहाँ मस्तक रखा। उसके तत्पश्चात यहाँ पर बस एक अन्य क्षेत्र का ही महत्व है। भुलेश्वर महादेव की जगह में अन्य क्षेत्र का महत्व एक दूसरा, जो भी 21 मंगलवार भरता है, कितने व्यक्ति हैं, कितने जिसको पुत्र नहीं था उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, धन नहीं था उसको धन की प्राप्ति हुई, जिसको कुछ भी यानी मतलब जो संकल्प करता है, कितने व्यक्ति हैं कि जो एक व्यक्ति तो हमारे पास में ही गांव में ऐसे थे कि उनको बेचारे को 20 साल की सजा हो गई थी। उन्होंने बैठे बैठे वहीं से संकल्प किया, उनकी सजा सारी जो है ना कट गई। उन्होंने आकर के जो चढ़ाना था वो चढ़ा भी दिया। तो ऐसे वो संकल्प सिद्ध देवता है, परंतु उनकी एक ही इच्छा रहती है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के 21 मंगलवार भरे और 21 मंगलवार भरने के बाद में जो बटुक भोजन कराए, और दूसरा नहीं, बटुक भोजन बच्चों को भोजन कराना चाहिए, बटुक भोजन कराए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं हमारे भोले बाबा। तो यहाँ पर साल वर्षों में श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, शिव पुराण और देवी भागवत वगैरह ऐसे यहाँ पर 27 प्रसंग, कथा प्रसंग हो चुके हैं। और 35 साल से यहाँ पर श्री तुलसी विवाह का आयोजन चल रहा है। और 35 साल से गुरपूनम, जैसे गुरपूनम जो है ना मनाते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ 10 गांव के बच्चे आते हैं, तो 4 से 5 हजार भोजन बच्चे पाते हैं, यहाँ आनंद लेते हैं। और हर साल यहाँ पर जो है ना श्रावण महीना जब आता है, हमारे यहाँ सोमेश्वर प्रथम जो है ना सोमनाथ भगवान के जो अपने सोमनाथ भगवान है, तो सोमनाथ भगवान को जो दर्शन करने के लिए जो भी व्यक्ति पैदल होकर के पैदल चलते हैं, दर्शन के लिए पैदल जाते हैं, उन लोगों को बहुत भामन भोलेनाथ भुलेश्वर महादेव के यहाँ से सारा सामान ले जाते हैं। तो वहाँ पर भजिया है, चिवड़ा है, चाय का वर्षों से प्रोग्राम हम रखते हैं हाईवे के ऊपर। तो सेवा जो है ना, यहाँ सेवा भावी हमारे 30 से 40 बच्चे हैं, लड़के हैं, युवान हैं। तो वो युवान जो है ना बना करके उनको खिलाते हैं, आनंद से चाय पानी पिलाते हैं, हम सब आनंद लेते हैं। और यहाँ पर सतत यानी मतलब 12 महीना बूंदी है, गांठिया, ये चलता रहता। कोई भी आए अपने यहाँ से बनाओ, खाओ पियो, चलता रहता है। और तीसरा इनका संकल्प भुलेश्वर महादेव का ये है कि तुम यहाँ पर जैसे कोई भी व्यक्ति, कहीं ऐसा समय बन गया हो जैसे कि इस साल
अभी ये महामारी निकली थी कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस की महामारी में हमारे भुलेश्वर को किसी ने आकर के कहा कि बापू यहाँ पर बेचारे जो परप्रांतीय मजदूर हैं वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो मैं भुलेश्वर महादेव के पास में आया, इनको वंदन किया, प्रार्थना किया, अंदर से विचार आया। हमने अपने बच्चों को बुलाया, 2-4 बच्चों को बुला करके उनसे कहा कि चलो भैया अपने इनको खिलाना चाहिए, क्योंकि भूखे को भोजन प्यासे को पानी, यही भुलेश्वर का है। तो उन सब बच्चे हमारे लग गए और एक से लेकर के हम 800 से 900 व्यक्तियों को जब शुरुआत किया तो छोटे से बर्तनों में चालू किया, और जब प्रारंभ हो गया तो बहुत बड़ा विशाल बर्तनों में, क्योंकि हम 50-50 किलो चावल है, 35 किलो रोटी है, 35 किलो बाजरा के टिक्कड़ है और बूंदी गांठिया साथ में लेते थे, 100 लीटर छाछ लेते थे, बच्चों को खिलाने के लिए जाते थे। इन सबको खिला करके, क्योंकि वो मेरे गरीब लोग नहीं थे, वो मेरे अतिथि देवो भवा, वो भगवान की मैं सेवा करता था, तो उन लोगों को खिलाते थे। 35 उनको जो है ना 47 दिन खिलाया। उसके उपरांत में यहाँ चालू रहता है, जैसे कि तुलसी विवाह है तो तुलसी विवाह में भी हर एक साल मेरा बस एक ही ध्येय है, यहाँ कथा चलती है तो दोपहर में शाम भोजन ले और शाम को भी भोजन ले, और वही भोजन ही मेन महत्व का है। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाइए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलाए। क्योंकि रामायण में भोजन का बहुत महत्व दिया है। इसीलिए भोजन एक ऐसी वस्तु है कि व्यक्ति सारी वस्तुओं से तृप्त नहीं होता है, उसको तृष्णा बढ़ती है, परंतु भोजन एक ऐसी वस्तु है कि जो व्यक्ति। गुरुदेव ने अभी जो सत्संग करवाया उसमें उसने बहुत ये मैंने सुना हुआ भी है कि ये जो अपना कोरोना काल चल रहा था वो समय पे यहाँ पे गुरुदेव भुलेश्वर बाबा की कृपा से अनक्षेत्र मतलब चलता फिरता अनक्षेत्र कि वो ट्रैक्टर में लेके जाते थे, आसपास में सबको सेवा करते थे और भोजन प्रसाद देते थे। तो भुलेश्वर दादा की कितनी कृपा थी जब वो डॉक्टर की टीम आई थी। ये बहुत बड़ी बात है कि वो समय पे हर जगह जाओ तो कोरोना पॉजिटिव, लेकिन जितने यहाँ पे कार्यकर्ता स्वयं सेवक थे सबको चेक किया। तो ये एक बात अच्छी हुई कि किसी को भी तो बुखार तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन छोटी सी खांसी भी मतलब नहीं थी। तो इतने मतलब कितने 1 महीना 1.5 महीना चला होगा ये। हाँ, 47 दिन चला था। हाँ, तो 47 दिन तक ये सेवा यज्ञ चला और भुलेश्वर दादा की कृपा से ये सब चलता रहता है। और हम लोग, मैं तो बहुत छोटा था जब से, तब से यहाँ पे आता हूँ, तो बहुत दिव्य और तपस्या की ये भूमि जो है वो हमने भी मतलब बहुत अनुभव किया है। जैसे कि कोई भी संकल्प है यहाँ पे आके, मतलब सत्य संकल्प, ईश्वर जो है वो तो सत्य संकल्प ही पूरा करते हैं। देखिए सत्यनारायण की कथा में हम सुनते हैं कि सिर्फ वो कठियारा था, वो ब्राह्मण था, तो वो संकल्प करता है कि मुझे आज जो भी धन मिलेगा उसमें प्रभु की मैं सेवा करूंगा। तो वहां पे उसको हमने देखा सत्यनारायण कथा, उसमें दुगना जो भी मतलब रोज मिलता था उससे दुगना धन मिलता है। तो ईश्वर है जो सत्य संकल्प हमारा सिद्ध करते हैं। ऐसा नहीं कि सत्यनारायण कथा में सिर्फ सिरा खाने के लिए जाए, तो ऐसे नहीं। ये भुलेश्वर दादा भी सत्य संकल्प है, मतलब कि अगर आपकी कोई सत्य संकल्प है तो वो पूरा करते हैं। और वो गुरु महाराज की कृपा और भुलेश्वर दादा की, भगवान श्री रामचंद्र की, हनुमान जी की कृपा बार बार बरसती रहती है और उसका हम अनुभव भी करते रहते हैं। मैं तो बहुत, जब भी बस ऐसा होता है कि चलो अभी जाना है कहीं पे, तो मैं और कहीं जगह नहीं जाता। ये गिर प्रांत जो जंगल विस्तार है पूरा गुजरात के अंदर ये ताराला क्षेत्र में, तो ये मुझे यहाँ से अच्छा दिव्य और कहीं जगह नहीं लगता। और गुरु महाराज की रामचरितमानस की अभी तो समय, और ये अपना हम लोग वर्चुअली बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनसे पास सत्संग करो। अरे अभी थोड़े दिन पहले ही हम आए थे, तो शाम को 10 बजे बैठे थे, रात को 2 बजे, हाँ शरद पूर्णिमा का, वो क्या आनंद लिया। वो ठाकुर जी को बाहर लिया, उसकी आरती अर्चना हुई और रात को 2:30 बजे तक सत्संग करते थे। और सुबह ऐसा नहीं है कि गुरुदेव महाराज यहाँ पे अधिपति है, तो वो सुबह 5 बजे उठ के हमने देखा है। हम लोग सोए थे क्योंकि रात को लेट तक सोए थे, तो 6 बजे 7 बजे तो कुछ आवाज आ रहे थे, तो हमने बाहर जाकर देखा तो गुरु महाराज जी वो झाड़ू लगा रहे थे। बोलते शास्त्री जी कर्म भी करना पड़ता है। तो ये बहुत महानता है जो बहुत ऐसे संतों से सीखने मिलती है। प्रथम, जैसे कि प्रथम भगति कर संतन संगा, दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। तो संतों के, गुरु के चरणों में जाओगे, बाद में ही प्रभु के पास जा सकते हो। तो ऐसे गुरु महाराज जी ठाकुर जी की कृपा से हमसे मिले हैं, उनसे हमसे सत्संग किया। तो गुरु महाराज की हमारी दूसरी एक जिज्ञासा ये है आपके श्री चरणों में
कि आज की युवा पीढ़ी जो है, अभी जो ये टेक्नोलॉजी का युग आया, मोबाइल अच्छी भी चीज़ है और बहुत सारे दुश्मन भी, जैसे ना खाने की चीज़ें खा रहे हैं, ना पीने की चीज़ें पी रहे हैं, और ये जो व्यसन है तंबाकू का, ये आप मतलब गुरुजी ऐसा भी वो उसके लिए वो बोलते हैं, बहुत अच्छे 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 दृष्टांत देते हैं कि वो जो मतलब दुर्योधन वाले हैं, ये है वो है। तो ये बहुत अच्छा है। तो गुरुजी महाराज ऐसी कुछ हमको बताइए चीज जिससे पूरे युवा वर्ग जो है उनको प्रेरणा मिले, जो अभी खिल रहे हैं फूल, जिसको अभी उसका भविष्य बहुत आगे है, और उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे चलना चाहिए और ये जीवन कैसे बिताया जाए ताकि प्रभु की प्राप्ति हो। बस ऐसा हमारा एक थोड़ा सा जिज्ञासा है और आपको विनती है कि कुछ हमको बताइए। जय श्री राम। मैं भोलेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रकृति के साथ में प्राण और प्रकृति साथ में जाती है। कोई भी व्यक्ति जब जब अपना शरीर को छोड़ता है तो उसके साथ में प्राण के साथ में प्रकृति जाती है। क्योंकि एक बार नारद जी से किसी संत ने प्रश्न किया था कि आप कहते हो प्राण प्रकृति हमको कैसे दिखेगा, उसका आप बताओ। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, बोले नहीं आप बता दीजिए मुझको। तो नारद जी ने एक चश्मा दिया था, चश्मा। क्योंकि उसने जब ज्यादा जिद किया, महात्मा ने कहा कि बोले प्रभु मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ हजारों व्यक्ति आए हुए हैं, उसका सबका लक्ष्य एक ही है कि चलो वहां पर तुलसी विवाह में जाना है, अथवा तो कोई बहुत बड़ा यज्ञ में जा रहा हूँ, परंतु यहाँ आकर के उसके भाव और विचारधारा अलग अलग क्यों, उसका कारण क्या है। और कोई कोई आकर के बड़ी शांति से बैठता है, उसका कारण क्या है। सबका अलग अलग नेचर दिख रहा है। इन्होंने जब चश्मा दिया और चश्मा महात्मा ने जब लगाया तो उस चश्मे में खाली 15% ही व्यक्ति मनुष्य थे, बाकी का उनका पूर्व जन्म का बताया था। कोई शेर है, कोई चीता है, कोई बैल है, कोई भैंस है, कोई यानी मतलब नाना प्रकार का उसमें सब कुछ बताया था। तो प्राण प्रकृति के साथ में जाते हैं। तो जो व्यक्ति जैसे मावा खाते हैं, अब मैं तो सब हमारे युवान धनों को, युवान धन है उनसे सबसे मैं बार बार अपील करता हूं कि युवान धन, माँ भारती तुम्हारी बार बार राह देख रही है और पुकार रही है कि हे युवानों तुम जागो। परंतु हमारे युवान कहाँ से जागे, क्योंकि उनके लिए संगात समझाते कामा कामा क्रोधो भिजाते। हमारे बच्चे छोटी अवस्था से जब अनभिज्ञ होते हैं, जिसको ज्ञान नहीं होता, अज्ञान अवस्था से ऐसे अज्ञानी के साथ में बैठते हैं और वो तुरंत ही ऐसे मल उसको उसमें बहुत मेहनत करते, क्या क्या वो उसकी कलाएं हो, वो तो मैं तो पूरा उसमें उत्तीर्ण नहीं हूँ। तो वो दुनिया भर की कलाएं करते हो, देख देख करके बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेते। पर ऐसी जो है ना वो प्रेरणा, गुरु का अर्थ क्या होता है, गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश में ले जाना। और शत्रु किसको कहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश से अंधकार में ले जाओ, वो शत्रु। तो प्रकाश से अंधकार में ले जाते हो, वही तो शत्रु है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ले खा, हम चोड़ करके उसको जब देते हैं और उसको खिलाते हैं थोड़ा खा खा करके, और फिर धीमे धीमे उसको आदत पाड़ देते हैं। यानी मतलब किसी किसी व्यक्ति को तो पूर्व जन्म की ही आदत होती है। क्योंकि जब वो जैसे कोई बैल है या कोई ऊंट है या कोई रोजड़ा है, यानी मतलब पशु जितने भी हैं, भैंसा है, ये सब जो है ना क्या खा करके और बैठ करके और उगाड़ते हैं। जैसे मतलब खा करके जो उगाड़ते हैं अंदर से, तो उसको उगाड़ते हैं। अब वही व्यक्ति जो है ना आकर के, भगवान बहुत दयालु है, रामायण में लिखा, कबहू की कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत स्नेही बड़े भाग मानस तन पावा। कितने जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय होते हैं तब मनुष्य देह प्राप्त होती है। और जब मनुष्य देह प्राप्त हो जाती है, फिर वो जो है ना सोचता है कि मैं मनुष्य देह तो हमको भगवान ने दे दिया, परंतु पहले हम वो जो है ना वो उगाड़ते थे, तो अब हम रौत कैसे उगालेंगे, कैसे क्या करूं। तो वो फिर मुंह में लकड़ा डालता है। सूखा फल मतलब लकड़ा ही तो हुआ। वो लकड़ा डालेगा, लकड़ा डाल करके फिर वो अपना नियम पूरा करेगा। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमको बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि बापू हाँ ये देखो ये राम का उपासक है, कृष्ण का उपासक है, शिव का उपासक है, शक्ति का उपासक है, ये देवी देवताओं का किसी का भी उपासक हो, परंतु हमारे जितने व्यसनी हैं, कोई भी XYZ कोई भी व्यसन करता हो, चाहे उसमें मावा खाता हो कि बीड़ी पीता हो, तम्बाकू पीता हो, गांजा के कोई दूसरा व्यसन हो बड़ा लंबा चौड़ा, ये जितने व्यसनी हो सब दुर्योधन के उपासक हैं। क्योंकि दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के समझाने के लिए गए। जब वो समझाने लगे तो उस समय पर भगवान कृष्ण ने कहा था, बोले दुर्योधन
आधा दे दे। बोले नहीं देंगे, बोले नहीं नहीं दे दो, ये धर्म कहता। बोले धर्म नीति में जानता हूँ, राजा का राजकुमार हूँ, परंतु मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों? कि दे दूं वो धर्म है, और नहीं दूं अधर्म। अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, दे नहीं सकता हूँ, अधर्म मेरे साथ में है। बोले इससे तुम्हारा यतन होगा, जतन हो जाएगा, पर पतन नहीं होगा। बोले वो हमको भी पता है कि अगर मैं दे दूं तो जतन होगा, परंतु दे नहीं सकता हूं, ना दूं तो पतन होगा, परंतु पतन भले हो। तो कोई भी व्यसनी को पूछो कि भाई तुम व्यसन करते हो, मावा खाते हो, तो ये मावा तुमको फायदा करता है कि नुकसान? तो वो यही कहेगा खाने वाला कि नुकसान करता है, फिर भी वो खाता है, क्योंकि दुर्योधन का उपासक है। वो अपना भला नहीं कर सकता है कभी भी। वो दुर्योधन का उपासक होने के कारण से वो अपना कभी भी भला नहीं कर सकता है। इसीलिए उसको हम तो सब हमारे युवान धन से मैं साधु होकर के अपील भी करता हूँ, परंतु इस बारे में प्रार्थना भी करता हूँ कि मैं सब हमारे जो युवान धन है, अरे अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ये पूरा जो है ना, जितना व्यसन है व्यसन का परित्याग कर दो। जितना अपने में अपलक्षण है सारे परित्याग करके अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दो। और उसमें भी अब तीसरी पीढ़ी को ज्यादा समझाता हूँ, क्योंकि दादा और दीकरा, मतलब दादा का बच्चे को कौन खिलाता है? दादा। तो दादाओं से ज्यादातर अपील में करता हूँ कि दादा जितने भी हैं, ठीक है, बचपन में संगात संजाए थे, कामा कामा क्रोधो विजायत संग दोष लग गया था, करते रहे, परंतु आपकी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी को अगर हमको ज्ञान देना है तो पहले स्वयं सुधरना पड़ेगा। तो सुधर करके अपनी माँ भारती का, अपने देश का और अपना स्वयं का, शरीर का भी कल्याण। कारण कि आज कितने हमारे युवान धन बर्बाद हो चुके हैं, कितने का मुंह का जो है ना कैंसर हो गया, कितने को दिमाग का कैंसर हो गया, कितना अंदर से दुखी हो गए, कितने का जो है ना यानी दांत जो खुलता, मुंह खुलता नहीं है। ये भी परिस्थिति गंभीर होती चली जा रही है। और व्यसन ही व्यसन में, जैसे कि एक व्यक्ति अगर 2 मावा खाएगा तो 30 रुपया जाएगा, तो 900 रुपया का हुआ, 900 रुपया का हुआ। और यानी मतलब अब समझ लीजिए कि एक बरस में उसका कितना का होगा? 10,800 का मावा हुआ। एक साल में 10,800 का हुआ। अगर वो 10,800 किसी भी परिवार लेकर के उसका हल्दी मिर्चा रामरच धनिया जीरू तेल कुछ भी लेकर के डाल दे तो एक बरस का पूरा हो जाएगा 10,000 का। और उसको खा करके अपने पिचकारी जहां तहाँ मार देते हैं और दूषित भी हो जाते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी है, जहाँ समार सवेरे उठते हैं तो समुद्र वसने देवी पर्वत थन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्याम पाद स्पर्श समस्वे देवी तत्वम समाप्तम। हम उससे प्रार्थना करते हैं, रोजाना प्रार्थना करना चाहिए, करते हैं। परंतु ये लोग कितना जो है ना, देखो उसके ऊपर कितना मतलब सवेरे से उठ करके और उसका गुनहगार बनते हैं, दूषित रहते हैं वो लोग, क्योंकि ये सब अपराध हैं। सवेरे से उठो, उसके ऊपर थूकना, पेशाब करना और लेटन करना, सब कुछ वो सहन करती है। उसके अलावा में भी तुम देखो खा करके जहां तहां उसको बिगाड़ते हो, माँ भारती को बिगाड़ते हो। अरे तुम अच्छा नहीं कर सको तो ठीक है, क्योंकि मेरी माँ है, ये माँ का तुम पेट चीरते हो फिर भी उसमें से अमृत निकालती है। कितना व्यक्ति जो ना किसान उसका पेट चीरते हैं, परंतु उसमें से सोना हीरा और मोती जैसे दाने निकलते हैं। हम और आप सबको खिलाते पिलाते आनंद कराती है। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना समझो तो भी ठीक है, अपील समझो तो भी ठीक है, मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम दुर्व्यसन से दूर हो जाओ, तुम्हारे बच्चों का भला करो। और जगत का नहीं कर सको तो अपना नहीं कर सको तो, परंतु अच्छा नहीं कर सको तो ठीक है, पर बुरा तो नहीं करो। किसी दूसरे के बच्चों को कभी ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहिए कि अरे खाओ, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जितना बने उतना अपने छोड़ो। और दूसरा मैं एक और भी बहुत सुंदर उनको युक्ति भी बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति को, हमारे जो युवान धन है, अगर वो मजबूर हो गया हो, क्योंकि व्यसन मजबूर कर देता है, अगर तुम नहीं छोड़ सक रहे हो तो हम आपको नुस्खा बताते हैं। बहुत सुंदर नुस्खा है। मैंने हजारों व्यक्तियों को छुड़वा दिया, जो 10-10 मावा खाने वाले को मावा छुड़वा दिया है। एक अजवाइन, दूसरी सौंफ, जिसको हमारी गुजराती भाषा में वरियाड़ी कहते हैं। एक अजवाइन, एक सौंफ वरियाड़ी और तीसरा कपूर। कपूर तीनों को जो है ना, दोनों को इकट्ठा करके थोड़ा सा कपूर गोटी जो है ना ले ले और लेकर के अपने रोजाना खाने लगे तो उसको मावा छूट जाएगा। इसलिए मैं युवान धन से प्रार्थना करता हूँ, युवान धन से बार बार अपील करता हूँ, युवान धन से बार बार याचना करता हूँ कि तुम ये सब दुर्व्यसन छोड़ दो और तुम अपने परिवार का, अपना
और अपने जो है ना देश का, अपनी माँ भारती, अपने धर्म का जो है ना तुम ध्वजा लहराओ, क्योंकि युवान हनुमान होना चाहिए, शैतान नहीं होना चाहिए। और उसको ध्वजा जो भी व्यक्ति धर्म की ध्वजा लहराता है वो धर्म वीर कहलाता है। इसीलिए बार बार हम यही प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि हमारे भारत के जो युवान है, युवानों को ऐसी प्रेरणा दो प्रभु कि वो दुर्व्यसन से दूर हो जाए और अपने सद्विचारों में आ जाए। जय श्री राम। गुरुजी, आपने वैसे तो कहा गया है कि साधु की क्षण, मतलब आज तो हमारे लिए आपने बहुत ही ज़्यादा समय दिया है, तो बस एक अंतिम जिज्ञासा ये है कि जीवन के मोक्ष के लिए, साधना के पथ पे चलने के लिए, चाहे कोई भी पथ पे, चाहे रामचरितमानस से, चाहे भागवत से, चाहे छोटे से, ऐसा नहीं है बहुत, मतलब जो गांव में रहते हैं जो लोग, तो वो तो प्रेम से अपनी पगड़ी रख के भी वो भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो मोक्ष मार्ग के लिए सबसे आपके जो, मतलब आपने जो सब निचोड़ रहा है पूरा, अब तो मतलब रामचरितमानस, भागवत और बहुत सारे ग्रंथों को आपने अध्ययन किए हैं, तो सबसे निचोड़ वाली कौन सी बात है कि जो सरलता से ईश्वर की तरफ हमें ले जाए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उसमें सीधा ही लिखा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायना जे परलोक समारा, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। यानी मतलब सबसे सुंदर एक ही है। देखो कलयुग में योग नहीं कर सकते हो, कलयुग में ज्ञान नहीं ले सकते हो, कलयुग में यज्ञ नहीं होता है, कलयुग में जो कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञान एक आधार बस बात मात्र और मात्र है, कलयुग कलो कीर्तनो हो। तो कलयुग के अंदर में मात्र और मात्र है, आप हरि नाम संकीर्तन चालू कर दो बस, और कुछ भी नहीं, ना उसमें वेद नहीं, पुराण नहीं, शास्त्र नहीं, उपनिषद नहीं, इतिहास नहीं, कोई भी वस्तु नहीं लो, क्योंकि उसका सुंदर साधन है मात्र और मात्र भगवत नाम जो है ना संकीर्तन। क्योंकि भगवान से जब श्रीमद् भागवत में स्पष्ट आया है, बोले आप कहाँ बसते हो, तो भगवान ने कहा नाम बसा में, हे नारद, हाँ बोले नाम बसा में वैकुंठे, योगी नाम हृदय नचे, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदाहा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ना हम योगियों के हृदय में बसते हैं, ना हम वैकुंठ में बसते हैं, ना क्षीर सागर में बसते हैं, ना गोलोक में बसते हैं। तो बोले आप कहाँ बसते हो, बोले मेरे जो भगत प्रेम से मेरा गायन करता है। जैसे रामायण के अंदर में राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना नारा। भगवान भूत भामन भोलेनाथ बोले तह समाज गिरजा में रहे, जब सारे देवता एकत्रित हो गए और वहां पर जाकर के बैठे, बोले भगवान को मिलने के लिए चलना है, तो बोले कहाँ चलना, बोले को पूर्व वैकुंठ जान के, कोई कहता वैकुंठ में चलेंगे, कोई पहने तो बोले क्षीर सागर में चलेंगे, कोई गोलोक में जाएगा, कोई कहीं कह रहे थे। तो बोले तह समाज गिरजा, हे पार्वती उस समाज में मैं भी था, भगवान भूत भामन कहते हैं। तो बोले फिर आप क्यों नहीं बोले, बोले हमको समय नहीं मिल रहा, सब बोल रहे थे। फिर बोले अवसर पाए बचने के, जब हमको समय मिला तो हमको एक अवसर मिल गया। तो मैंने सबसे कहा, बोले अगजग में सब राहत मेरा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे ठाकुर नहीं हो। बोले कैसे मिलेंगे, बोले प्रेम थे प्रभु प्रगटाए जब आगे, प्रेम थे प्रभु तुरंत, जैसे लकड़ी में तुम माचिस लगाओ देवता लगाओ, तुरंत ही वो पकड़ लेती है। तो प्रेम जो है ना परमात्मा को बहुत प्रिय है। और राम ही केवल प्रेम, रामायण में भी लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, प्रेम है। और भगवान का संकीर्तन करते जाओ, और वो उसमें भी हमारे बताए सीताराम कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाई विद राखे राम ताही विद रहिए। तो भगवान का जो है ना सबसे मेन, अगर जिस व्यक्ति को कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना है, कलयुग में किसी को भी उन्नति करना है, कलयुग में किसी को सद्विचार ले आना है, बस मात्र उसने अपने परिवार के पास में रात्रि में शाम को जाकर के बैठ करके एक घड़ी यादी में पुनियाद, अगर वो थोड़े ही समय के लिए सब एकत्रित हो करके रामधुन करेंगे तो उस परिवार में कभी भी परेशानी नहीं होगी। भाई मजबूरी है कि, क्योंकि रामधुन में अगर कोई व्यक्ति सुर पकड़ रहा है तो रामधुन में सुर भी नहीं पकड़ना है, उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे कुछ बजाना है तो रामधुन में कुछ नहीं बजाओ, रामधुन चलेगी, श्री राम जय राम जय जय राम अपने चल रही है, क्योंकि उसमें कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर संगीत के साथ में चले तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी चल जाएगा। तो राम नाम एक ऐसा है कि राम नाम एक औषधि, और जितने भी है राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। राम नाम एक अंक है, एक, और सब साधन है शून्य, जीरो।
अंक बये पर कुछ नहीं, सुन गए 10 गुण, तुम एक लगा, एक के आगे 0 लगाओ 10 हो गया, और 10 के आगे एक और दूसरा लगा दो 100 हो गया, और उसके आगे और लगा दो तो 1000 हो गया, एक और लगा दो 10,000 हो गया। मतलब बढ़ता चला जाता, 10 गुना बढ़ता है, परंतु एक को खींच लो तो 0 0 0। तो इसीलिए राम नाम एक अंक है, सब साधन शून्य है। राम नाम को ही लेकर के हम और आप, कलयुग केवल नाम आधारा। रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में कुछ भी नहीं है, कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग समझुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। इसीलिए कलयुग का बहुत बड़ा महत्व है कि कलयुग में राम नाम के सिवाय, क्योंकि राम नाम चालू कर दो सब जितनी भी रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नौ निधि सब आ जाती है। इसलिए वो कहूँगा हनुमान जी का भी दूसरा नाम है कीर्तनेश्वर। इसलिए सबसे सुंदर है कि किसी को भी बोलो कि तुम राम नाम जब चालू कर दो। अगर प्रसन्न करना हो, हनुमान जी को प्रसन्न करना हो, शिव जी को प्रसन्न करना हो, ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो, राम नाम चालू कर दो। राम नाम जैसा कोई नाम नहीं है। क्यों कि वो नाम चालू में भी वो नाम आता है, और जब चला जाता है व्यक्ति तो राम बोलो भाई वो भी। जय श्री राम। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में आज हमने भुलेश्वर दादा के सानिध्य में जो सत्संग का लाभ लिया, उनसे काफ़ी मात्रा में हमें लाभ प्राप्त होगा। हम तो बार बार आते ही रहते हैं, और आप लोग भी। अभी भी एक बार आपको बता दूं कि ये भुलेश्वर क्षेत्र जो है वो तपस्या की भूमि है और प्राचीन भी है। तो आप भी यहाँ पे पधारने हम हार्दिक निमंत्रण देते हैं। और आपको बताया मैंने जिससे पहले कि अगर यहाँ पे आना है तो अगर आप सोमनाथ क्षेत्र से आ रहे हो तो सोमनाथ से प्राची वाले रोड पे जाओगे तो प्राची से 1 किलोमीटर पहले घंटिया का एक पाटिया यहाँ बोलते हैं गुजरात में, कि वहाँ पे वो बोर्ड आता है, वहाँ पर एक रास्ता गिरता है तो वो घंटिया फाटक भी बोलते हैं उसको। वहाँ से आएंगे हम तो 7 किलोमीटर के बाद भीमदेवड़ गांव आता है, वहाँ से 1 किलोमीटर वहाँ ये भुलेश्वर धाम पड़ता है। और अगर आप जूनागढ़ साइड से तालाला साइड से आ रहे हो तो तालाला से माधोपुर होके प्राची वाले रोड पे तालाला से 15 किलोमीटर तकरीबन कम इतना होता है, तो आप वहाँ से भी यहाँ पे आ सकते हो। तो आप सबको भी ये सब मतलब इतने दिव्य धाम का दर्शन करने के लिए हार्दिक आमंत्रण। और सदगुरु भगवान ने जैसे बताया कि यहाँ पे हमने तो देखा हुआ है, ये कोई बात वो तो नहीं है, लेकिन रात को 1 1 2 2 बजे अगर कोई आता है यात्रालु कहीं से, तो या चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, गुरुदेव भगवान रात को भी मतलब उन्होंने बोला कि चलो आप पहले खाना खा लो, आप प्रसाद ले लो, फिर उसके बाद जो भी आराम करो जो भी है। तो ऐसा दिव्य धाम है। गुरुदेव भगवान अच्छी तरह से, ये कर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी जो मतलब भक्ति है और उसके जो आशीर्वाद है, उसकी जो कृपा है वो हम लोग ले। बस इनके साथ श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जय भुलेश्वर।